Ma'am, you are not audible. Ma'am, you have muted yourself. Yeah. Thank you. See, this is first class of mine in this Microsoft Teams. थोड़ा next class से थोड़ा ये हो जाएगा. Okay. So we are starting with the unit 2 in language across curriculum. Okay. So इस वीडियो आप करो. So this is, प्लीज आप अपना ऑडियो सब म्यूट करो, वीडियो भी ऑफ करो. ముక్త దర్వాజా వేసేయండి, నాకు డిస్టర్బెన్స్ గా ఉంటుంది. ఈ దర్వాజా వేసేసా. नमस्ते मैम. और कितनी देर करोगे तुम लोग? Okay, we are starting with the unit 2. Unit 2 is mainly dealing with the language acquisition. In schools, when you are going to schools to teach different subjects, there are three languages mainly offered in Indian situation. Okay, so what are these language? We give status, some first language status to one, second language, third language, and then we have subjects math, science, and social science. So together they study six subjects, and many more languages are generally coming. Okay, so what are these things? How children acquire these many languages? And what are different types? When if you observe person speaking, the moment they start speaking, we can even guess what is their social status, from what kind of profession they are in. We can guess. That means language is specific for a specific profession. Okay, law persons, they have one type of language. Medical professionals use one language. Even newspaper reports use one language. The same language of reporting in television channels differ. So we have different types of language for different purposes. So how this language is going to be different? Okay, so this is what we are going to see in this. We come across different terms: multilingualism, what is it? Language and culture, how they are related, whether they are related or not. About all these things we are going to study. So today, being the first class, I want you to be introduced with the concept of first language, second language, third language, and how what are these status implications for teaching learning, and what we are how language is in general acquired by students. We are going to discuss about these aspects, and from next class onwards on Saturday I am going to exactly start with the first language and second language acquisition. Okay, now I am starting. मैम सॉरी, हाँ कई सारे बच्चे की लॉबी में वो लोग बोल रहे हैं कि हमें ऐड करने के लिए बोलिए मैम को. ओके. म्यूट ऑल ही आया है, एडमिट में कोई नहीं है अभी. यहाँ कोई नहीं है बेटा, म्यूट ऑल वही ये है. हाँ, एक आया अभी, बस वेटिंग इन लॉबी. ओके, और कोई नहीं है. ओके, सो आई एम स्टार्टिंग दी पावर पॉइंट. आर यू एबल टू सी? आर यू एबल टू सी? नो मैम. नो, Not yet. अभी हाँ अभी मैम. Yes, ma'am, it's clear. is it visible?
So I'm starting with the discussion. Okay, if you have any doubt in between, unmute और मुझे पूछना. Okay, so मैम today आप we थोड़ा are हिंदी going. में भी डिस्क्राइब करेंगे? Yes, yes, yes. धीरे धीरे थैंक यू। आऊंगी. बता दूंगी. शुक्रिया मैम। Okay. So now we are trying to understand what is first language. प्रथम भाषा बोलते हैं, प्रथम भाषा. So generally first language is generally mother tongue of the person is identified as the first language. तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं? लैंग्वेज फॉर विच ए पर्सन फर्स्ट गॉट एक्सपोज्ड. आप अपने लिविंग कॉन्टेक्स्ट में बाय बर्थ आप किस चीज को, जिस लैंग्वेज को आप पहले, एक मिनट, जिस लैंग्वेज को आप पहले एक्सपोज होते हो, बाय बर्थ वी एक्सपोज टू द लैंग्वेज दैट इज स्पोकन बाय आवर पेरेंट्स. हमारे माता पिता जो लैंग्वेज को बोलते हैं उसी को हम एक्सपोज करते हैं. जनरली वो हमारा मदर टंग होता है. सो द मदर टंग इज आइडेंटिफाइड एज द फर्स्ट लैंग्वेज. तो देन वी हैव अनदर nomenclature as L1. L1 is in the context of what to say, in the context of learning the language. तो यहाँ हम ये भी बोल सकते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. सी आप गुजराती हो बट स्टिल यू जॉइन ए इंग्लिश मीडियम स्कूल. सो देयर L1 इज इंग्लिश. आपको गुजराती नहीं आएगा. गुजराती में भी सेकेंड या थर्ड लैंग्वेज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द स्कूल. Okay, so L1 that is identified in the educational context. Then native language. See, the language that is spoken by majority of people in that region. In Gujarat, Gujarati is the native language. So people may be coming from different parts of country. पूरा देश से बहुत सारी जगह से आके लोग गुजरात में रह सकते हैं, बट गुजरात की नेटिव लैंग्वेज गुजराती होती है. So in that sense ये भी फर्स्ट लैंग्वेज आएगी. एंड देन यूज्ड ऑन रेगुलर बेसिस. सो इन ए लिविंग कॉन्टेक्स्ट, हम जहाँ रहते हैं वहाँ टू कैरी ऑन विद द डे टू डे रिक्वायरमेंट्स, we use a particular language. So that language is known as first language. Otherwise here we can say that is the language that is used by majority of the people. Okay, so generally we can say in this sense, if you say for a person generally mother tongue is going to be the first language. जो गुजराती है, गुजरात में ही रहते हैं, तो उनके लिए उसका मदर टंग ही फर्स्ट लैंग्वेज है. बट फॉर दोज पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड गुजरात एंड सेटल डाउन इन गुजरात, दे हैव मोर देन वन लैंग्वेज एज ए फर्स्ट लैंग्वेज. बिकॉज मेरे घर में मेरा अपना खुद का लैंग्वेज है. मैं बाहर आ जाती हूँ गुजराती. इन द सपोज इफ आई जॉइंड what to say, an English medium school or Hindi medium school, then I have another language. So in a general sense, only one language is identified as a for a person as a first language, but there may be more than one language for a person to speak. Hello. Okay, so this is first language. So in a general sense, mother tongue is identified as the first language, but when we go outside and join a school, the language, the medium of instruction is the first language. Otherwise then native language, the language that is particular for a particular state या एक region में. अदरवाइज साइमल्टेनियसली along with, यहाँ देखो गुजरात में गुजराती हिंदी भी ज्यादा बच्चे बोल सकते हैं. इन ए अर्बन एरिया वी यूज इंग्लिश, हिंदी, गुजराती तीनों लैंग्वेज बोलते हैं, हम देख लेते हैं. सो वी कैन से हिंदी एज द सेकेंड लैंग्वेज. प्रिडोमिनेटली जो गुजराती जानते हैं वो हिंदी को भी बोलने की कोशिश कर सकते हैं या समझने की कोशिश करते हैं. थोड़ा थोड़ा वर्ड्स मिलता है तो I can make people understand my requirement by using Hindi, जिसको गुजराती ही जानते हैं. So we can say the language that is used understood by people after first language. Okay, but it is not native language. It is not the language of that particular region. Because of some reason,
it came into the context. See, for Indians, English is the second language because we were ruled by Britishers for 300 years. तो उनकी वजह से यहाँ लैंग्वेज आई और दे कंट्रोल्ड एवरीथिंग, एडमिनिस्ट्रेशन सब कंट्रोल किया है, तो उनकी वजह से लैंग्वेज स्प्रेड हुआ है. अब उसको निकालना बहुत मुश्किल है. सो वी हैव एक्सेप्टेड इट एज ए second language. It has become a language of connectedness because India is formed by different states with different languages. Okay, so यहाँ क्या होता है, हम एक दूसरे से संपर्क में आना है तो सबको हिंदी आएगा ऐसा कोई गारंटी नहीं, सबको बाकी अपनी लैंग्वेज को छोड़ के बाकी लैंग्वेजेस आएगा ऐसा गारंटी नहीं. So because of this we need one communication language. Because of colonial rule, English has taken that place. We were not in a position to spread awareness about other languages. Otherwise we have some नेगेटिव एटीट्यूड. हम क्यों एक्सेप्ट करें, आप मैं सीख रही हूँ आप भी हमारा सीखो, ये सब आ जाता है. सो बाय माय नीड आई शिफ्टेड टू अदर प्लेस, वहाँ मैं सीखने की कोशिश करती हूँ. अदरवाइज वी आर कंफर्टेबल विथ माय ओन लैंग्वेज एंड इंग्लिश. So second language is that one which is predominantly used after first language. मैं first language में बात करती हूँ because it is my mother tongue. बाद में मुझे दूसरे लोगों से जो मेरे language जानते नहीं उसे communicate करना है तो normally I dependent on English. So English become my second language, but it is not a native language. Learned later in life. अभी हम पैदा होते ही उसको बोलना नहीं सीखेंगे. धीरे धीरे with age we come to know that this is also a language of communication. Okay, so like second language is the language predominantly used after first language. It is for educational purpose, employment purpose, even for government communication. Okay, suppose Gujarat government's official language is Gujarati. But in order to communicate with governments of other states and even central government, either I have to use Hindi or English. But see, all the states may not be comfortable in using Hindi, so we use English. So English is the second official language for Indian government and for most of the state government. If I want to communicate my requirement to other state, Maharashtra hai ya Kerala है, कर्नाटका है, so English would be the most accepted language. Okay, so this is second language. So second language is not native language to that particular reason because of some reason. यहाँ इंडिया में colonial reason है. Mainly आप कनाडा जाओ, कनाडा में French is the second language. वहाँ उनका कुछ दिन रूल रहा है. Otherwise बहुत सारे लोग because of some reason they migrated there. So that language is established. So because those people are continuing living there, they settled down there, that language is accepted in the constitution. So official purpose के लिए यहाँ एक problem होता है. First language, second language, इस status के बारे में इसलिए बोलती हूँ. Officially उसको जब government status देता है तो we can send communication. So India में आपको इसलिए banks में कहीं भी देखो एक तरफ गुजराती में होता है, पीछे इंग्लिश और हिंदी में होता है. सो दैट इज द एक्सेप्टेड नेचर. वो बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट है, इट यूजेस इंग्लिश हिंदी. सो स्टेट गवर्नमेंट है, आइदर इट यूजेस दैट पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट लैंग्वेज, अदरवाइज हिंदी और इंग्लिश. सो फर्स्ट लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज की स्टेटस जिसको दिया है उसका यूज में आएगा. सो दिस इज स्टेटस वाइज. एजुकेशनली इसका क्या इम्प्लीकेशंस है हम बाद में देखेंगे. ठीक है, Now we are moving into, यहाँ ये आपके लिए नहीं है फिर भी मैं बोल रही हूँ because we are following three language formula. Three language formula हम यहाँ आपको explain नहीं करती हूँ, but what is third language आपको समझना है. So third language is nowhere present in our living context. हम उसको जानते ही नहीं in any way, किसी भी reason से. अभी आपको Spanish is third language. मतलब इसका दूसरा नाम फॉरेन लैंग्वेज होता है. इट इज ए फॉरेन लैंग्वेज. इट इज नोवेयर सीन इन एनी ऑफ आवर लिविंग कॉन्टेक्स्ट. हम बाकी इंडिया की लैंग्वेजेस देखते हैं, हिंदी इंग्लिश हमारे लिए आता है, बट वी आर नॉट heard of anything related to Spanish.
कब आप उसको सीखते हो? व्हेन यू हैव ए नेसेसिटी, when you have a necessity to learn that language, then only you come in contact with that, otherwise you are not going to learn. आपको कहीं बाहर जाना है, your employment or education purpose, you have to move to that particular place. आपको पढ़ना है, काम करना है, तो तभी आपको, क्योंकि वहां जाके आपको रह के करना है, वहां सीट मिला, वहां आपको जॉब मिला, so you have to move to that place and you have to work there, you have to study there, you have to live in that context. So you you have a necessity to learn that language. अभी आपको ये जरूरत आई कि आपको वो लैंग्वेज सीखना है, ठीक है? सो दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज इज नोन एज थर्ड लैंग्वेज. इसका दूसरा नाम है फॉरेन लैंग्वेज. इसको हम फॉरेन लैंग्वेज बोलते हैं. एंड नो एक्सपोजर टू द लैंग्वेज टिल लर्निंग स्टार्ट्स. अगर हमारी नेसेसिटी से जब तक हम उसको सीखते नहीं, तब तक हम उस लैंग्वेज से परिचित नहीं होते हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, सो फर्स्ट लैंग्वेज इज द मदर टंग. सेकंड लैंग्वेज इज द लैंग्वेज दैट इज डोमिनेंट, that is dominantly spoken in that particular area after first language. First language के बाद जो आता है. Third language is never spoken. It is not at all in touch with the context, but person learns it on necessity. मुझे जरूरत आ पड़ी तभी मैं सीखती, अदरवाइज नहीं. सी अभी मैं बाहर से आई हूँ, मेरा अपना लैंग्वेज है एंड आई नो हिंदी एंड इंग्लिश, सो आई कैन कैरी ऑन. इंडिया में मेरा चलता है, लेकिन मैं उस जगह जाती हूँ जहाँ उस लैंग्वेज के सिवा कोई लोग नहीं जान, दूसरा लैंग्वेज नहीं जानते हैं. सो विद इन 1 वीक वी स्टार्ट यूजिंग दैट लैंग्वेज. थोड़ा थोड़ा तो हम यूज करेंगे, धीरे धीरे उसमें हमको पकड़ आएगा, ठीक है? सो दिस इज अबाउट फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज एंड थर्ड लैंग्वेज. ओके, नाउ वी आर कमिंग टू. यस 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 मैम, आई एम हर्षित राज. हाँ मैम, बोलिए. आई हैव अ डाउट हाँ बोलिए. कि जैसे कि अगर मैं जैसे नॉर्थ इंडियन हूँ, हाँ अगर मैं साउथ इंडियन के भाषा को जानना चाहता हूँ या मान लो कि मैं कोई वर्क पर्पज से वहाँ गया, तो शैल आई कंसीडर दैट लैंग्वेज एज ए थर्ड लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज? आपके लिए वो थर्ड लैंग्वेज ही होगा ना. आप उससे परिचित नहीं हो, बिकॉज ऑफ योर इंटरेस्ट, योर पर्पस, यू आर लर्निंग दैट, है ना? कोई आपको जबरदस्ती आपकी कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं है, आप गए हो वहां, उस प्लेस में गए हो विथ योर इंटरेस्ट, विथ योर पर्पस, तो आपके लिए वो थर्ड लैंग्वेज ही होता है, आपके लिए एज ए पर्सन, फॉर यू. और एक ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि लाइक कि आई हैव लर्न दैट लैंग्वेज. स्कूल में आता है, स्कूल में आप सीख रहे हो, इसीलिए मैंने थर्ड लैंग्वेज का बता दिया. स्कूल में आपको 3 लैंग्वेजेस होता है ना? आपकी मातृभाषा होती है या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये सब आता है ना हमारे लिए, ठीक है? तो उसमें आपको वो दिया गया, that language is offered, so you have selected those languages and learned it. लेकिन आपकी मार्कशीट में स्टेटस दिया हुआ होता है, समझ में आया? तो वो लैंग्वेज को आपको, आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, सो दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन्ड यू. इंग्लिश इज फर्स्ट लैंग्वेज, हिंदी सीबीएसई स्कूल, हिंदी सेकंड लैंग्वेज, बिकॉज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है. थर्ड लैंग्वेज आपको, यू आर गिवन ए नंबर ऑफ चॉइसेस, है ना? गुजराती मीडियम स्कूल्स में भी होता है, गुजरात में इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में भी होता है. सो वो 3 लैंग्वेजेस की बाजू में आप अगर देखो तो दैट इज मेंशन्ड L1 L2 L3 आपका स्टेटस दिया जाता है, बिकॉज ऑफ योर भाषा को मैं उस भाषा को सीख लिया, मान लो कि लाइक कि तेलुगु है, वो मैं सीख लिया, तो देन इट शुड बी कंसीडर्ड एज सेकंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज? वो आपकी पर्सनल लेवल पे ये होता है. यहाँ मैं जनरली अभी वो पर्सनल लेवल पे ही एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो आपने सीख लिया बिकॉज यू गॉट एक्सपोजर, तो आप मल्टीलिंगुअल हो गए. वहाँ सेकंड ऑफिशियल स्टेटस की क्या जरूरत है? यू हैव गॉन देयर और वहाँ आप नेटिव लैंग्वेज है सीख लिया. अदरवाइज इवन इफ यू आर नॉट गॉन देयर, बट आपने सीख लिया, किसी से आया, तो वो आपके लिए पर्सनली यू बिकम ए मल्टीलिंगुअल, दैट्स इट. यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब हम एज ए पर्सनल इंटरेस्ट आप सीख लिए हो, सो यू बिकम मल्टीलिंगुअल. आपके लिए स्टेटस की कोई जरूरत नहीं. समझ में आया? फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज यहाँ एजुकेशनल लेवल पे
ऑफिशियल स्टेटस पे लेवल पे बात किया तो ये ऐसा दर्जा होता है। पर्सनली मैं कितने भी लैंग्वेजेस सीखूं, क्या होता है, आई एम इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग, मुझे सीखना है, सीख लीजिए, ठीक है। ओके, सो नाउ वही इस पे हम आ रहे हैं अभी, ठीक है। तो व्हाट आर इट्स इम्प्लीकेशंस टू टीचिंग लर्निंग। टीचिंग लर्निंग के लिए क्या होता है, मेन प्रॉब्लम भी मैं यहाँ लिखी नहीं, पर मैं आपको बता रही हूँ, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज ए प्रॉब्लम हमारे लिए, because all of us want to educate our children in English medium school, but English is not our mother tongue. But the children, when they go to school, for them English is the first language. So if as a parent, as a teacher, I have no choice. आप English medium school में काम करते हो, so you have to teach everything in English. That is the requirement. English is the first language. But what about the status of mother tongue? जो mother tongue मेरे घर में गुजराती बच्चे को आ रहा है, are we making our student fluent in Gujarati? हमको क्या है कि बच्चे इंग्लिश में बोलना है, that is a requirement. अभी मैं भी ऐसे ही किया, यहाँ बाहर से आई हूँ, so I made my children study in English medium school, क्योंकि it is the गुजराती मुझे आती नहीं है, I am not in a position to handle, और इंग्लिश सीख लिया तो they have more ways of education, employment opportunities होता है। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि ये मैं एक्सप्लेन करूँ तो आपको समझ में आता है, बच्चा इंग्लिश अच्छा सीख पाता है, ना गुजराती आता है, और दूसरी लैंग्वेज क्या होता है ये मैं बता रही हूँ। बाय द टाइम स्टूडेंट कम्स टू स्कूल, अगर आपका फर्स्ट लैंग्वेज मदर टंग ही आपका स्कूल में फर्स्ट लैंग्वेज है तो they knows first language, speaking and listening, reading and writing to be taken care of. प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, मैं अपनी जो फर्स्ट लैंग्वेज मेरी मदर टंग है वही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में मेरे बच्चे को ज्वाइन किया, तो उसके लिए ऑलरेडी बाय द टाइम दे गो टू स्कूल बाय 3 years और 4 years, उसको वो स्कूल की लैंग्वेज L1 जो है उसको सुनना बोलना आता है, दे कैन स्पीक इन दैट लैंग्वेज, दे कैन लिसन एंड अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस। तो उसके लिए हमको क्या करना है, फर्दर जाने के लिए खाली रीडिंग राइटिंग ही मुझे सिखाना है, तो हाई लेवल पे हम टीचिंग स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट है, साइंस पढ़ा रहे हैं, सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, बच्चे को ज्यादा कंटेंट देना इजी होता है, क्योंकि मैं बोलती हूँ तो बच्चे को समझ में आता है। रीडिंग राइटिंग क्योंकि हायर लेवल स्किल्स है, वो धीरे धीरे आएगा, बट स्टूडेंट इज फ्लुएंट इन फर्स्ट लैंग्वेज। बट मैं गुजराती या दूसरा साउथ इंडियन जो भी हूँ, बट मैं अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में ज्वाइन करवाया, until and unless I am fluent, my children are not able to speak the language fluently. वो फ्लुएंसी मुझे डेवलप करके भेजना पड़ेगा, हम ऐसे कर पाते हैं, ठीक है। सो सेकेंड लैंग्वेज may or may not know speaking or listening, accordingly opportunities are to be given. यहाँ मैं इंग्लिश मीडियम की बात कर रही हूँ, ऑफिशियली स्कूल में इंग्लिश ही फर्स्ट लैंग्वेज है, बट घर में इंग्लिश बोला नहीं जाता है, तो बच्चे को बिल्कुल पता नहीं। मैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मैं स्कूल में एक्सपोज किया, तो बाय अंडरस्टैंडिंग द लेवल ऑफ द स्टूडेंट मुझे पढ़ने की अपॉर्चुनिटीज देना है। इसलिए स्कूल्स में जाते हैं तो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में वो क्या बोलते हैं, आप कितने हद तक पढ़े हो, हम पूरा स्ट्रिक्टली इंग्लिश ही मैनेज करते हैं, बिकॉज इंग्लिश इज द first language. I have to provide proficiency in students to use English at the native level. मुझे वो चाहिए, तो आपको घर में नहीं आता है, मैं स्कूल में अच्छा सा लैंग्वेज यूज कर रही हूँ, घर में जाके वो हिंदी गुजराती दूसरा रीजनल लैंग्वेज बोल रहा है, तो स्कूल में दे कैन नॉट कोप अप। तो सेकेंड लैंग्वेज नॉर्मल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है नहीं है, सेकेंड लैंग्वेज जब वो बच्चा आता है दे मे नॉट नो और मे बी एक्सपोज्ड, तो एक्विजिशन उसका ऑलरेडी हुआ है नहीं हुआ है, दोनों कैटेगरी आते हैं। तो वहां आपको मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स कहाँ खड़ा है देख के आपको इंस्ट्रक्शन शुरू करना है। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में आप जाओ तो हिंदी कैसे सिखाते हैं, कोई इवन सीनियर केजी में शुरू करते हैं, कोई फर्स्ट स्टैंडर्ड में। देयर आर डिफरेंट वेज टू स्टार्ट द लर्निंग ऑफ द सेकेंड लैंग्वेज। तो एज ए टीचर आपको ये करना है। देन व्हेन वी नो द थर्ड लैंग्वेज, सो दे डू नॉट नो द लैंग्वेज इन एनी सेंस, तो एवरीथिंग हैज टू बी गिवन फ्रॉम स्क्रैच। अगर बच्चे को थर्ड लैंग्वेज हमको सिखाना है जिसका ऑप्शनल में 5th 6th स्टैंडर्ड में आता है, तब वो चुन लेता है, संस्कृत है,
सीबीएसई स्कूल में इंग्लिश हिंदी के अलावा इवन फ्रेंच जर्मन जो भी है वेराइटी ऑफ ऑप्शनल्स आर गिवन, तो वो तो लैंग्वेज के लिए एक्सपोज्ड ही नहीं है, सो एवरीथिंग यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। तो यहाँ सभी टाइम क्या होता है, जब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज मदर टंग तब बच्चे को सब सीखना ही आसानी होता है, बट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और मदर टंग वेरी करता है तो यहाँ प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हमारे लिए मेरे घर में वो सेकंड लैंग्वेज है बट स्कूल में वो फर्स्ट लैंग्वेज है, तो वो सिखाने की स्तर में प्रॉब्लम तो आ रहा है। तो इसलिए नेशनल पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसीलिए वो 3 लैंग्वेज फार्मूला हमने जो दिया, 3 लैंग्वेजेस में 2 मस्ट बी इंडियन लैंग्वेजेस विथ इंग्लिश नॉट टू बी कंसिडर्ड एज 1। तो 3 लैंग्वेजेस हम बच्चे को ऑफर कर रहे हैं, 2 आर इंडियन लैंग्वेजेस, इंग्लिश को हम फॉरेन लैंग्वेज जैसा ऑफर नहीं कर सकते हैं क्योंकि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ इंग्लिश भी हो सकता है। इट आल्सो सेज दैट द फ्रीडम टू चूज द 2 इंडियन लैंग्वेज शुड बी लेफ्ट टू द स्टेट्स, रीजन्स और स्टूडेंट्स। वो 2 लैंग्वेजेस भी क्या है वो चुनना भी इट इज द परव्यू ऑफ द स्टेट। गुजरात में गुजराती हिंदी हो सकता है, आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जाओ इंग्लिश और दूसरा लैंग्वेज अपना खुद का लैंग्वेज हो सकता है। And if you go to southern states, they have their own language, Tamil and English. They never choose Hindi or other language क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं, पढ़ाने वाला नहीं। That may be a problem. Okay. So इसलिए जनरली आप स्कूल्स में जाते हो तो आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ एनपी ने भी एनईपी ने भी यही बोला है, मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज और लोकल लैंग्वेज। हमको मदर टंग में इंस्ट्रक्शन देना कुछ हद तक, इंग्लिश दूसरा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आप 10th के बारे में बाद में हायर सेकेंडरी में या सेकेंडरी लेवल पे इंट्रोड्यूस करो, बट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आप अपना लैंग्वेज जब तक नहीं रखते हो बच्चे समझना बहुत मुश्किल है। जब तक वो लैंग्वेज उसको घर में सपोर्ट नहीं मिलता है, दे कैन नॉट कैच विद द वे लर्निंग इज गोइंग इन द स्कूल। तो इसलिए इंग्लिश मीडियम स्कूल्स आप अभी इंटर्नशिप में भी जाओ, ऑलरेडी यू माइट हैव गॉट एक्सपोजर फॉर टीचिंग। यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है, जहाँ पेरेंटल सपोर्ट नहीं है, घर में इंग्लिश लैंग्वेज फ्लुएंसी नहीं है बच्चे में, वो खामी हमको दिखती ही है। तो इसलिए अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल दे नेवर अलाउ स्टूडेंट्स विथ वेयर पेरेंट्स का कुछ प्रॉब्लम है, दे एम्फसाइज एटलीस्ट पेरेंट्स नो, बोलना नहीं आता है बट एटलीस्ट बाकी चीज करे तो स्पोकन लेवल लैंग्वेज का हम वी कैन टेक केयर ऑफ इट। समझ में आया? तो इसलिए फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज ऐसा आपको आसानी से लगता है, पर यहाँ प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि हमारे जैसे इंडियन जैसे सिचुएशन में सिंपली बोलना है तो हमारा लोकल लैंग्वेज, मेरा नेटिव लैंग्वेज है, वी हैव सो मेनी लैंग्वेजेस एक्सेप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद हिंदी, इंग्लिश सिंपली हम बोलते हैं, बट दी स्टेटस बाकी आप एम्प्लॉयमेंट में जाओ, कहीं दूसरी जगह जाओ, मैंने अपना लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी पढ़ के आया, सपोज मेरे पास हिंदी किसी किसी स्टेट में अवेलेबल ही नहीं है, ओनली 2 लैंग्वेजेस आर ऑफर्ड, थर्ड लैंग्वेज नहीं दिया, वो आके बाहर स्टेट में आना है तो कैसा रहेगा? दिस इज विद इन आवर ओन कंट्री वी बिकम नॉन नेटिव्स। लैंग्वेज आना बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमें कुछ हद तक बेसिक सीखने तक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कंपलसरी मदर टंग ही होना है। अदरवाइज बच्चे को क्या है कि लैंग्वेज समझ में नहीं आता और टीचर एक लेवल पे बोल रही है, मेरा लर्निंग लेवल दूसरी लेवल पे है, मैं पहले लैंग्वेज सीखूं या कंटेंट सीखूं? साइंस आप इंग्लिश में पढ़ाते हो, मुझे इंग्लिश आता नहीं तो मैं कहाँ से सीखूं? आप शुरुआत होते ही एक लड़की मुझे बोला, मैडम आप हिंदी में भी बात करो, मैं इंग्लिश में ही बात की, आपको कैसे लगता है? See, this is the thing, but actually आपका medium of instruction English है तो strictly we have to follow teaching, learning, speaking, writing, everything in English. At this level we are not in a position to manage this. तो schools में क्या होगा? See, you have to understand this. These are the implications. मेरा mother tongue ही medium of instruction है तो क्योंकि I already know listening and speaking, I can be easily taken into the teaching learning atmosphere at higher level. मुझे डायरेक्ट में बाकी कंटेंट्स बोल सकती हूँ, साइंस, सोशल साइंस, और आपको रीडिंग राइटिंग धीरे धीरे डेवलप करूंगी, बट बाय स्पीकिंग यू लर्न द कंटेंट, राइटिंग बाद में आएगा।
बट द मोमेंट द सेम थिंग सेकंड लैंग्वेज आया, आई मे बी एक्विजिशन ऑलरेडी मेरा लिसनिंग स्पीकिंग है, मेरे पेरेंट्स की या सराउंडिंग की वजह से एक्सपोजर नहीं है, तो उसके लिए पूरा स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। फॉरेन लैंग्वेज ऑन ऑप्शनल हम ले रहे हैं तो हम सीखते हैं, बट उसके लिए you have to start from the scratch. Okay, so now we are coming to the last point, that is language acquisition. Language acquisition कैसे है, steps क्या है, process क्या है, मैं next class में मैं बता दूंगी, but यहाँ हम दो theories है how language is acquired by persons in general. So they follow two lines, behaviorism and mentalism. Okay, so behaviorism is talking about environment. So it has nothing related to capacity है, बच्चे को बोलना आना है, ये है वो है, ये सब नहीं है. So they said just you give the environment, student will automatically learn the language. Classroom में आते ही बच्चे के लिए charts रखो, उसके लिए बहुत सारा पिक्चर्स रखो, पिक्चर्स के साथ आप पिक्चर की नेम क्या है, नेम बोर्ड रखो, बच्चों को अपना स्पेलिंग के लिए. सो यू डेवलप दैट क्लासरूम एनवायरनमेंट, यू इंसिस्ट ऑन स्टूडेंट्स टू स्पीक ओनली दैट लैंग्वेज, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो भी है उसी में बात करना है, दूसरा नहीं है. तो यू ट्राई टू डेवलप दैट बिहेवियर इन द स्टूडेंट. लैंग्वेज बोलना, लैंग्वेज सुन के आंसर देना, लैंग्वेज को रीड करना, राइटिंग करना, बिकॉज लैंग्वेज इज नथिंग बट यूज ऑफ स्किल. लैंग्वेज कब हम जितना अच्छा यूज करते हैं उतना अच्छा हम फ्लुएंट बनते हैं. सो डेवलप दैट स्किल्स. आप क्लासरूम एनवायरनमेंट या बाहर कहीं भी अगर लैंग्वेज सीखना है तो आप एनवायरनमेंट क्रिएट करो, बच्चा सीखेगा. कोई बच्चा जो लैंग्वेज नहीं आता है तो गुजराती के सिवा दूसरा नहीं बोलते हैं, वहां जाके आप 15 दिन रहो, you learn the basics of language. हमको तो आएगा because the environment is providing, is insisting, imposing us to speak that language. So आप environment create करो, language acquisition easily होता है. We need not do anything. Okay, but दूसरा उसकी contrast में yes, 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 यस यस, या आपको सीखना ही पड़ेगा, है ना. हिंदी आप जानते हो तो गुजराती पढ़ सकते हो, एक डिक्शनरी रख के या आपकी मोबाइल में, यू लर्न द लैंग्वेज, धीरे धीरे आता है. सो यहाँ एनवायरनमेंट आपको इम्पोज किया कि गुजराती सीखे, गुजराती पढ़ना सीखना है आपको. ओके, सो दूसरी थ्योरी है मेंटलिज्म. ये मेंटलिज्म आया तो आपको समझ में आता है. ओके, मेंटलिज्म इज, इट इज टॉकिंग अबाउट द इनर कैपेसिटी, इनर एबिलिटी. Okay, so what they say, language learning, language acquisition is inheritance. This is what they want to say. हमारे पेरेंट्स से we get so many characteristics. In that the language learning ability is also that, because intelligence is carried out. Genetically it is proven ना, intelligence is carried out. हम mental disabilities ये सब है तो ये भी carry out होता है जीन से. So that language learning ability is also given through inheritance. तो इसलिए बच्चों में language सीखने की different levels होते हैं. So if someone is very clever and easily grasped, because inner उसकी mental ability इतना है कि they have natural interest, natural fluency, natural flow for that language. तो कोई भी language है वो अच्छा सीखता है. यहाँ चॉम्स्की की एक थियरी है. What he is saying, जो भी है बच्चा अपना एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस से पैदा होता है. दे हैव ए लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस. तो इसलिए छोटे बच्चों को हम ग्रामर ये सब नहीं सिखाते हैं तो उनको, लेकिन वो सही गलत समझ के सीख लेता है. हम धीरे धीरे उसको करेक्ट करते हैं, ऐसा बोलना नहीं है, ऐसा बोलना है. दे नेवर क्वेश्चन अस कि ऐसा ही क्यों बोलना है, ग्रामर क्या है, जेंडर की डिफरेंसेस सब हम उसको बताते हैं. We just correct them, ऐसा नहीं बोलना है, but immediately they pick up. So हमारा मदर टंग जैसे जैसे डेवलप हुआ, वो मदर टंग की बेसिस पे हम सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज आप पकड़ रहे हो, फर्स्ट लैंग्वेज जो एक्सपोज हुआ उससे कंपैरिजन में कंपेयर कॉन्ट्रास्ट करते आप सीखते हो. अननोइंग प्रोसेस है.
ठीक है, दिस इज मेंटलिज्म. सो लैंग्वेज एक्विजिशन इज इनहेरिटेड, वो नेचर में होता है. इसको नेचर नर्चर भी बोलते हैं. बिहेवियरिज्म इज टॉकिंग अबाउट नर्चर. जब देखो नेचर में नहीं है बट एनवायरनमेंट आपको इट हैज प्रोवोक्ड यू टू लर्न इट, तो आपको सीखना ही पड़ेगा. सीख लिया, अच्छा लेवल का नहीं हो लेकिन आपको यू हैव टू सर्वाइव देयर. सो यू स्टार्टेड रीडिंग, यू स्टार्टेड स्पीकिंग, you started listening and interacting, you started writing also. In the same way mentalism is saying language तो सीखता है but वो language सीखने की level जो है that is basing on mentalism. आप inner capacity से जितना है उससे आपको ये सीखना पड़ेगा. तो इसलिए for teaching learning process both are true. So language learning is and behavior is also it is mental capacity also. हम क्लास में 60 बच्चे होते हैं, सबके लिए हमने एक ही एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया बट ऑल ऑफ देम आर नॉट परफॉर्मिंग एट द सेम लेवल बिकॉज देयर मेंटल कैपेसिटी इज सच दैट उनकी एनवायरनमेंट में कहीं उसका एक्सपीरियंस भी ऑल द टाइम इट इज नॉट मेंटल कैपेसिटी. टीचर की भी प्रॉब्लम हो सकती है बट मैंने सब बच्चे इंटेलिजेंट लेवल पे भी एक ही है, ऐसे ही 90% स्टूडेंट्स को ही चुन के एक ही एनवायरनमेंट दिया बट द वे दे लर्न द लैंग्वेज, दे एक्सप्रेस द लैंग्वेज इज डेफिनेटली गोइंग टू बी डिफरेंट. दैट इज देयर नेचर. उनको इनहेरिटेंस में ऐसा मिला है. नर्चरिंग हम जितने भी दे दो, मेरा इंटरेस्ट होता है, मेरा एटीट्यूड होता है, एप्टीट्यूड होता है, इनर कैपेसिटी होता है. Okay, I have so many emotions are also attached to that. So this comes under the mentalism. So teaching learning practices में हमको ये दोनों को समझ के अपनी क्लासरूम आपकी टीचिंग को प्रैक्टिस करना है. दैट इज द इम्प्लीकेशन. क्यों हम लैंग्वेज एक्विजिशन थियरीज को फॉलो कर रहे हैं. सो इट इज आप एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया, आपका बच्चा सीख सकता है. 70 स्टूडेंट्स में बी लर्निंग बट एट डिफरेंट लेवल्स. अगर आपको सबको एक ही लेवल में सिखाना है, एक ही लेवल में लेके आना है तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ बोथ दिस. बच्चे के लेवल क्या है, ठीक है, अदरवाइज बच्चे को बिल्कुल लेवल नहीं है, उसको उसकी लेवल पे एक्सरसाइज देके एटलीस्ट लेस देन पास, बाद में वो सीखेगा, उसका जरूरत है, यू कैन नॉट हेल्प दैट. लेकिन बच्चा हाईली इंटरेस्टेड है, उसको हमने लो लेवल की दिया. सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस ये सब होता है बिकॉज ऑफ मेंटलिज्म. मेंटल कैपेसिटी भी है, मुझे है लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे कुछ पर्पस नहीं लगा तब भी मैं सीखती नहीं. ठीक है. सो बिकॉज ऑफ दिस वी आर you have to understand the teaching learning purposes. इसकी वजह से हमारा ये प्रॉब्लम्स आता है. ठीक है. तो दिस इज व्हाट आई वांट टू डिस्कस इन दिस. फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, सेकेंड लैंग्वेज क्या है, थर्ड लैंग्वेज क्या है, उसका इम्प्लीकेशंस क्या है. सो जनरली टीचिंग लर्निंग बिकॉज यू आर गोइंग टू बी टीचर्स, आपके लिए ये टीचिंग लर्निंग में ये प्रॉब्लम्स होता है. मेनली मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, स्कूल में आपका लैंग्वेज इंग्लिश आपके लिए फर्स्ट लैंग्वेज होगा लेकिन आपकी नेटिव इसमें इंग्लिश आपका लैंग्वेज था ही नहीं, आपके पेरेंट्स को इंग्लिश आता ही नहीं. सो हाउ यू आर गोइंग टू सर्वाइव, आप स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाना है, क्या करना है. ओके. सो देन वो बिहेवियरिज्म, मेंटलिज्म, ये एस्पेक्ट्स को आपको समझ के उसके मुताबिक बच्चों की व्हाट इज द लेवल समझ के आपको अपनी टीचिंग लर्निंग को सुधारना है. इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोलो, जो भी बोलो, we have to accept that. Without that we are not in a position to do anything. Okay. तो इसके लिए हम we need to learn all these concepts. Okay. तो अभी आपको कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज वी विल मीट इन 11:45 सैटरडे को मिलते हैं. उस दिन हम फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन स्टेप्स प्रोसेस वो सब सीखेंगे. ठीक है. इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क. अभी कौन आ रहा है एडमिट, लास्ट में बाय बोलने के लिए आया. ओके. सो मैम आई हैव अ क्वेश्चन. हाँ पूछो. Actually I am basically Gujarati and my mother tongue is Gujarati. I'm living in Gujarat. तो जैसे आपने बोला in India we are taking English as our second language. तो क्या हम हिंदी को थर्ड लैंग्वेज कंसिडर करेंगे?
वो इट डिपेंड्स ऑन द स्कूल। अभी मुझे जब मैं पढ़ती थी मेरे लिए तेलुगु फर्स्ट लैंग्वेज था, बिकॉज अप टू 10th मेरा तेलुगु मीडियम है। तेलुगु मेरा फर्स्ट लैंग्वेज, हिंदी सेकंड लैंग्वेज, इंग्लिश मेरे लिए थर्ड लैंग्वेज है। दैट इज द रूल इन माय स्टेट। ऐसा है, उस टाइम नेशनल लैंग्वेज पढ़ना है, और हिंदी में हमारा पासिंग मार्क्स भी 20 था, बाकी में 30-35 था। 20 मार्क्स आए पास करते थे, बिकॉज दे वांट टू प्रमोट हिंदी। आजकल ये सब नहीं है। सो बारी बारी क्या है कि एजुकेशनल एनवायरनमेंट में दिस थिंग्स आर कंटिन्यूअसली चेंजिंग। तो जब आपको, इसलिए मैं बता रही हूँ, जब आप स्कूल में जाओगे तो आपको ये समझना है व्हाट दिस कॉन्स्टिट्यूशनली अब क्या है। ये बोर्ड, आप गुजरात बोर्ड में काम कर रहे हैं तो लैंग्वेज का एक लेवल होता है, सीबीएसई स्कूल में, इंटरनेशनल स्कूल में they have different rules and regulations for language। तो उस लेवल में आपको अपने आप को डेवलप करना है। गुजरात में ही रहो, गुजराती मीडियम में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इंग्लिश मीडियम में गई हो आप, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में गुजराती कैसे पढ़ाना है, हिंदी मीडियम में गुजराती किस लेवल पे, गुजराती मीडियम में गुजराती कैसे पढ़ाना है, ये सब आपको समझना है। समझ के उस लेवल पे आपको अपने आप को, आपकी टीचिंग को मेंटेन करना है। इसके लिए दिस इज द प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन। नॉर्मली ऐसे बोले तो कुछ नहीं है, दिस इज द प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, ठीक है। तो चलो 12:30 हुआ, मेरा दूसरा क्लास है, एमएड का क्लास एंगेज करना है। सो आपका जो भी डाउट्स है वी विल सी इन दी नेक्स्ट क्लास, ठीक है, सैटरडे को करेंगे। सो आई एम टेकिंग लीव। थैंक यू मैम, बाय। ओके, बाय Thank you, ma'am. बाय Thank you, ma'am. Bye. बाय।